Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So I feel exams will happen in September, but some candidates are over apprehensive. And their logic for apprehension is, sir, cases are increasing. And if cases are increasing, how examination will happen? So now see some statistics that will give you comfort that condition is not deteriorating, but it is improving. How we will look into this? 1 month ago, all India number of cases was 2.66 lakhs and recovered was 1.29. That translates into 48% recovery rate. After 1 month, the yesterday position is 7.68 lakhs cases, but recovered are 4.76 lakhs. Recovery percentage is 62%. Now this is a quantum jump of 14%. That means now out of every 100% who was declared active, 62 is already recovered. This is a comfortable position for a country of a size like India. Although testing is low, but testing is also going up. Now see the one of the worst affected city in the India is Delhi. In Delhi, there was 29,000 cases 1 month ago and recovered was only 11,000. So recovery percentage was 37%. Now there are 1,04,000 cases but recovered are 78,000. Recovery percentage works to be 75%. So recovery is just doubled from 37% to 75%. That means people are tested positive, they are given the treatment and they are able to recover. It is a positive sign because this is a disease that will continue to remain in this country. So the only thing is whether people are dying out of this disease or they are recovering, and whether recovery time is reducing or we are able to find some solution for recovery, that is important. So Delhi from news point of view may appears to be worse. But if we look at the active cases, it is just 23,000. It is lesser than total number of cases 1 month ago. And I think after 25 days, this is the lowest figure of active cases. So now active cases had started reducing. 1 week ago, active cases were 20,000. There was a time when active cases was 28,000. Now these are 23,000. So the people, those are under treatment, are also being reduced in a city like Delhi. And Delhi contributes a good amount of all India cases. 7.68 on all India, 1.04 is only from Delhi, one city. So the city which was having maximum cases is now showing a recovery rate as high as 75%. Why not other cities? This is the question. That means within 1 or 2 months, the country may able to achieve very good recovery rate. That is why I am putting these figures. Say this recovery rate may jump to 80% in 2 months' time. That means by the end of August, if we have 80% recovery rate, so country is very comfortable. So exams can be conducted. So have a positive mindset, and my view of giving this data is there may be people those are telling exams may not happen. But there are people those are thinking exams will happen. You should fall in this category, exams will happen. Because those are thinking exam will not happen, they are reducing your competition. You should feel happy. Let them not prepare. Don't try to convince them. Don't waste your energies in convincing them. Now many people call me and then they say, sir, it is not going to happen. So I say, okay, you don't prepare, leave preparation. Why we should convince you that exams will happen? Let the competition be less.
But if you have conviction, if you have faith in yourself, you should prepare. If you don't have conviction, if you are fearsome, you can leave the preparation. Choice is yours. But I will like that you should continue to prepare. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब काफ़ी विषय चलता रहता है कि सर एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, सर एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे. मुझे लगता है सितंबर में एग्ज़ाम होंगे. ऐसा मुझे क्यों लगता है, उसके लिए मैं थोड़े से आंकड़े आपके सामने ला रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि जो एक अननेसेसरी हमने पैनिक क्रिएट किया हुआ है कि कंडीशंस खराब हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कंडीशंस इंप्रूव हो रही हैं. क्योंकि टोटल केसेस तो बढ़ेंगे, पर ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण है. अब अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो आज हमारे केसेस हैं 7.68 और रिकवर्ड है 4.76. कितने परसेंट हो गए? 62%. एक महीने पहले क्या स्थिति थी? 2,66,000 केस और रिकवर्ड थे 1.29, 48%. दैट मीन्स 14% रिकवरी रेट बढ़ा है. 14% रिकवरी रेट बढ़ा है. इसका मतलब आज की डेट में पूरे भारत में जो 100 लोग एक्टिव घोषित हो रहे हैं, उसमें से 62 ठीक होके जा चुके हैं. सिर्फ 38% वो लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है या उनमें से कुछ लोगों की डेथ हो गई है. तो 62% कोई कम परसेंटेज नहीं है. अब हम इसमें देखते हैं वर्स्ट सिटी कौन सी है इंडिया में जो मोस्ट अफेक्टेड है. वो है दिल्ली. दिल्ली में एक महीने पहले 29,000 केसेस थे और 11,000 उसमें से रिकवर्ड थे. कितने परसेंटेज रिकवरी थी? 37%. आज क्या स्थिति है? 1,04,000 केस है. रिकवर्ड कितने हैं? 78,000. परसेंटेज रिकवरी कितनी है? 75%. दैट मीन्स 37% से 75%, दुगनी हो गई रिकवरी. हर 100 आदमी में 75 आदमी रिकवर होकर ठीक होकर घर चला गया. कोई भी बीमारी देख लो, 100% रिकवरी रेट तो किसी बीमारी में नहीं है. तो यदि ये 90% को क्रॉस कर जाता है रिकवरी रेट, या ऑल इंडिया में 80% को टच कर जाता है 31 अगस्त तक, तो हम कंफर्टेबल माना जाएगा इसको. 20% लोगों का इलाज चलता रहेगा. तो अगर रिकवरी रेट डेली इंप्रूव हो रहा है तो हम इसको डिटेरिएशन नहीं कह सकते, इसको इंप्रूवमेंट कह सकते हैं. क्योंकि लोग बीमार नहीं होंगे ये रोका नहीं जा सकता, पर लोग ठीक हो रहे हैं ये किया जा सकता है. तो ये किया जा रहा है. तो जो सिम्टम है, जो साइन है, जो लोगों को पता लग रहा है, दवाइयाँ बन रही हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, जो ये जब है जबकि एक्टिविटीज़ पहले से ज़्यादा है. एक महीने पहले कम एक्टिविटीज़ हो रही थी, आज ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं. उसके बावजूद यदि मेरे 75% थिकली पॉपुलेटेड दिल्ली के अंदर रिकवरी रेट आ गया है और ये 90% तक भी पहुंच सकता है 31 अगस्त तक, ऑल इंडिया में 80% तक भी पहुंच सकता है अगर हम इसी रफ्तार को देखें. 14% एक महीने में बढ़ा है ऑल इंडिया में, तो 14% और ऐड कर लें तो लगभग हम 76 से लेकर 80% के बीच पहुंच जाते हैं. और इसमें तो डबल ही हुआ है, तो आप पता नहीं, क्योंकि अब डबल हो गया तो 75 से डबल तो नहीं हो सकता, तो 10-15% तो और यहाँ से इम्प्रूव कर सकता है. तो अब यहाँ दो तरह के लोग हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं. एक का मानना है एग्ज़ाम नहीं होंगे, उनको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है. वो एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ना चाहते हैं तो वो आपका कंपटीशन घटा रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत करिए आप. दूसरे लोग वो हैं जो मानते हैं एग्ज़ाम होगा. अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए. अब मेरे पास कई कॉल आती हैं कि सर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा. अब मैंने किसी को कन्विंस नहीं करता. मैं, आपको लगता है एग्ज़ाम नहीं होगा, छोड़ दीजिए पढ़ाई. आपको लगता है एग्ज़ाम होगा, पढ़ाई करते रहिए. जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं पढ़ाई, उनकी चॉइस है. क्योंकि सरकार और सारी एजेंसीज तो पूरी कोशिश कर रही हैं आपका एग्ज़ाम हो जाए. अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये आपका काम है. पर जो लोग ये मानते हैं एग्ज़ाम होगा क्योंकि उनको जॉब चाहिए और बिना एग्ज़ाम पास किए उनको नौकरी नहीं मिल सकती, मेरी तो उनको सलाह यही है कि वो एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें. और कोई अगर उनको ये कहता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, क्यों तैयारी कर रहे हो, तो आप उसको कन्विंस मत करिए.
उसको इग्नोर करिए और अपनी पढ़ाई करिए। जो भी ये कह रहा है कि एग्जाम नहीं होंगे या एग्जाम होंगे, वो सिर्फ एक वेग सी बात कर रहा है। डेफिनेटिव क्या है? नोटिफिकेशन। आईबीपीएस पीओ ने आपको एक डेट दे दी है आरआरबी में, तो उस पर विश्वास करिए, उस पर काम करिए। बाजार की बातों को विश्वास करने से या जो लोग आपको आपके रास्ते से भटका रहे हैं उनकी बातों को ध्यान देने से क्या फायदा है? बाकी आपकी मर्जी है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो वैसे ही पढ़ाई करता रहा, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। पढ़ाई करने से अगर किसी का टाइम वेस्ट होता है तो उसके लिए तो मेरी सिंपैथीज है, क्योंकि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो आपके काम ही आएगा। अब दो कैंप है, एग्जाम होगा या एग्जाम नहीं होगा। आपकी इच्छा है आपको किस कैंप में रहना है। आपको लगता है एग्जाम होगा, पढ़ाई करते रहिए। आपको लगता है एग्जाम नहीं होगा, आपकी चॉइस है। पर मैं तो उसी कैंप में हूं कि एग्जाम होगा और जरूर होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।